Hi everyone, we are back with yet another podcast, and this podcast is about Experts View. Our series of expert views is around bringing subject matter experts, industry leaders on this platform and help our SMEs to understand critical issue pertaining to different functions and subject. And we today have Dr. Anvay Bhargav with us. Dr. Anvay Bhargav is a seasoned HR specialist. He is into this domain for last 26 and a half years. He is currently a faculty with Jaipuria Institute. He has worked with n number of businesses solving their HR problems. He expertise in performance management. He expertise in organization development. He expertise in a lot of subjects of HR which you might be going through. Now, why HR? So, India is currently blessed with more than 6 crore enterprises. And almost each of these enterprise has one common issue, HR management. टीम कैसे मैनेज करें, परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करें, रिटेंशन कैसे मैनेज करें, टीम साइज कैसे इवॉल्व करें. Every enterprise go through this, and this is despite the fact that there are thousands of companies and agencies who are helping SMEs to recruit, to train, and to take care of HR. But still the problem persists. So we identified the issue as the issue lies with the SMEs where they understand and take HR function as a cost center. हम लोग जितने भी स्टार्टअप्स या SMEs के साथ काम करते हैं 90% ऑफ दीज स्टार्टअप डू नॉट हैव अ HR फंक्शन. ना तो आपकी इच्छाएं कांस्टेंट है ना करने वाले की इच्छा कांस्टेंट. Change is constant. So quality and then the kind of services and the material now available was not available long back. Absolutely. So then I went to work with industries around. So I worked with Indal Hydro, that was aluminum building systems. So you started your career as an architect? Yeah, I worked for a year or so, and then I moved on to do my management course. Okay. And then I went on to do my work in industry. And from there I moved on to academics. So academics, because teaching and sharing things with people around was passion. And two, I said that this is one profession where I do not stop learning. Absolutely. So I keep on updating myself, doing new things around, and that's how the whole journey has been. So over the years, I went on to do course from Thomas Assessments, then I did a course in NLP, now I'm doing a course in generative AI, and I experiment a lot of things around. So I do talk to industries outside, take MDP sessions, bring that into the classroom, and then from there I have fresh perspectives because generation of today thinks very differently. And that is the real manpower of for now. So I understand that manpower as of now, and I deal with them on a daily basis. Yes. So they are totally different. Their approach is totally different. They don't work the way we used to make them work, or we worked long back. Their perspective is 1 to 2 years. What is it in it for me? So their question is, what is your employee value proposition? हम ये पूछते थे पहले कि आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप कंपनी को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे. Yes. अब आज की तारीख में मैन पावर ये पूछ रही है कि आप कंपनी हो तो मुझे क्या दोगे. Yes, the new generation is and they don't have those background problems. See, we had a background problem कि भाई हमें सेटल होना है, करना है. आज की जनरेशन उनको वो बैकग्राउंड सपोर्ट तो उनके पेरेंट्स ने बना के दे दिया. तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, मैस्लोस हायरार्की थ्योरी है कि फिजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स उनके पास ऑलरेडी है, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते थे पहले. Yes. Right? So they are now struggling for some kind of status, recognition, and they are into that particular stage. Information is overflow over it right now. Absolutely. So पूरी दुनिया के पास हर तरह की information है. They just don't know how to segregate and use it judiciously. And that is the latest challenge. That is AI. ग्रेट. सो मैं फिर अपन SMEs पे चलते हैं. उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट HR को लेके बहुत बड़ा है. So while hiring, you said कि we can create a growth vision and then acquire good resources. Another issue SMEs faces is their performance management. I have seen businesses struggling with performance management. They have no idea. They are just going by their assessment, their evaluation over a employee. कई जगहों पे एक ही employee पे over dependency हो जाती है. कई जगहों पे बहुत सारे रिसोर्स रख के भी पता नहीं होता है कि इससे क्या कराना है, इससे क्या. हाउ डू SMEs resolve this? That's very true and it happens a lot. Why there is no retention? आप एक ही व्यक्ति से 10 काम आप कराएंगे
और फिर जब उसका अप्रेजल करने बैठेंगे तब किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेकर के आप ऊपर नीचे उसका करेंगे, दैट डजंट वर्क. We need to be professional in that particular aspect. That's the point. मतलब how do SMEs take care of this performance management? Because अभी So there is a practical approach to it. What we say is that one, you should be clear कि आपके पास प्रोफाइल है क्या, आप क्या क्या प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं. भले ही आप उसके लिए आप इमीडिएटली आदमी आप एम्प्लॉय ना करें, बट प्लीज़ डिफाइन कि मुझे ये 5-6 प्रोफाइल हैं जिसके लिए मुझे ये व्यक्ति काम के लिए चाहिए. जब आप व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं उसको ये क्लियर बताइए कि ये प्रोफाइल आपसे हम काम कराएंगे या 2 प्रोफाइल का काम आपको करना है. सी क्लैरिटी नीड्स टू बी देयर बोथ द एंड्स. मैं अज्यूम कर रहा हूँ. कि अगर हम किसी को बता दें कि तुमको 2 काम करना है, then start charging more. So we need to understand that if a person is charging for something, it has to be justified by market benchmarking. So अगर हमने कुछ तैयार किया है, अगर हमने प्रपोजल कुछ तैयार किया है, तो वो प्रपोजल हमें ये चेक करना है कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है. इट कैन नॉट बी लेस देन व्हाट मार्केट इज पेइंग. यू वांट समथिंग कि मैं चाहता हूँ कि भी 4-5 साल एक्सपीरियंस भी व्यक्ति हो, बहुत बढ़िया हो, और मैं उसको पैसा दूँ जो मार्केट में आधा हो. तो दैट विल नॉट वर्क. वो व्यक्ति क्यों रखेगा आपके पास? So we need to promise something, if not today. See, if not today, you might say that this is the growth chart, this is the career path, you stay with us. See, first 3 months it's like this, another 3 months it goes on like this. So if you stay with us for 2 years, so this is the career growth that you have with us. So we need to predefine it. And for predefining, 2 things I am taking out of what you're saying. One, you're saying कि SMEs को भी अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहिए. yes. वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 2 जने काम कर रहे हैं कि 5 जने काम कर भले रहे ही हैं. आपका इस वक्त काम कर रहा व्यक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने कंपनी स्टार्ट की है तो आपके पास कम से कम एक आइडिया तो होना चाहिए अगले 2 साल में कहाँ क्या करने वाला हूँ. एंड यू शुड हैव अ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट बिफोर यू कि भाई अगर ऐसा हुआ तो इतने ग्रोथ होगी. इट्स लाइक सिंह आर्किटेक्चर में बोलते हैं कि भैया जब आप प्लान बना रहे हो तो नींव आप इस हिसाब से डालोगे कि आपको अगले कुछ टाइम में 2 मंजिल चढ़ानी है, 3 मंजिल चढ़ानी है, 5 मंजिल चढ़ानी है. नींव तो उतनी गहरी जाएगी ना. Yes. नींव बार बार नहीं डलती है. So very interesting point coming in, and I think we all should recognize it. आप की कंपनी में आप 1 एम्प्लॉय या 10 है या 15 है, you are required and you should prepare a organization structure. I think it's a very good exercise. मेरे ख्याल से जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो they will also understand कि हमारे गैप्स क्या है, हम कहाँ पे वीक है, कहाँ पे हमारे पे एडिक्वेट मैन पावर है. एंड आई थिंक ये नहीं करते हैं ऐसे भी. आई थिंक उनको लगता ही नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों बनाए, हम ही तो कर रहे हैं. सो वो दे देमसेल्फ आर डूइंग CXO एक्टिविटी, वो मार्केटिंग अपने ऊपर इतना वजन लेते जाते हैं कि उनको जो एक्सपेंशन के लिए जो अपना टाइम देना है वो वहाँ नहीं दे पाते. So we need to think from that perspective. So one good key takeaway from this entire interaction is this organizational structure. Every SME should do it. Perfect. Sir, moving on to next question. हम लोगों ने SMEs के साथ एक और चैलेंज देखा है, एंड ये हम अभी भी देख रहे हैं. There are good number of SMEs जो which realize this issue जो हम बात कर रहे हैं, and they kind of bring a good team on board. But trainings become a issue. एंड ये मेरे लिए भी क्वेश्चन है कि एक एंटरप्राइज जिसका अपना एक डोमेन है, वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एक सेक्टर में काम कर रहा है, अब उसने लोगों को बुला लिया, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है एंड बहुत तेजी से मार्केटिंग के डायनामिक्स भी बदल रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोटोकॉल्स भी चेंज हो रहे हैं. तो इन चेंजेस को मिटिगेट करने के लिए वीसी ट्रेनिंग होनी चाहिए. बट SMEs ये सब कैसे मैनेज करें? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तरफ स्टार्टअप्स हैं एकदम कूल ऑन टेक, प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल, कैनवास सब समझते हैं. एक तरफ SMEs हैं, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उसके अराउंड प्रोडक्शन कैसे करना है या ट्रेड कैसे करना है या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एंड देन द मैन पावर. अब आई फील दे फील अ लॉट ऑफ heat in managing the skill sets. ये कैसे solve करें? See, skill sets are changing on a daily basis these days. Yes. मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पार्ट ही नहीं, हर तरह से चीज़ें इतनी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें मैन पावर को भी अगर चेक करें तो अलग अलग एज के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं. ऐसा नहीं है कि शुरू से एक ही बैकग्राउंड रहो. और आज की तरफ अगर आप NEP भी देखें तो आप अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं. सो यू हैव गॉट लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन मैन पावर, राइट? एंड 2 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर देयर. So now we say that
when we said that you should to design, profile समझना चाहिए आपको, we say you should do the job analysis first and should understand कि किस तरह की competencies आपको चाहिए. Competency assessment centers का जो काम होता है कि आप competency assess कर रहे हैं कि किस प्रोफाइल के लिए किस तरह की स्किल सेट हमें चाहिए, और वो असेसमेंट हमें मार्केट के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे अपडेट करनी होती है ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो उस चीज़ को अपडेट कर सके. सो आई नीड टू हैव assessment center so that employees' competent skills can be assessed, and as per the new skills that are assessed are required, I need to conduct training for them. Now again, for that matter, I cannot training for all the people together क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है. Yes. So I need to understand tailor-made, customized trainings for people around. तो सर ये कॉस्टली अफेयर नहीं होगा कि एसएमई के लिए? पहले तो रिसोर्स लाओ, फिर आपने कहा कि अपन को उसको ग्रोथ देनी है, जर्नी देनी है, तो उसको अपन को उसके लिए कुछ प्लान बना के रखो. देन अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो अब उसको ट्रेन करो. हाउ डू यू सी एसएमईज कैसे कोप अप करें इस सबसे? इट लुक्स Long back I came across a printing press और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके पास सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है और कुछ ही लोग इंडिया में जिसके पास वो प्रिंटिंग प्रेस है, और वो जो प्रेस जो है वो दिन में मतलब वो 3 शिफ्ट में चल सकती है लगातार, राइट. लेकिन उस प्रेस को भी मेंटेनेंस चाहिए थी, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए थे, Yes. राइट. उसके पार्ट्स भी चेंज होते थे. Absolutely. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमंस. दिस ट्रेनिंग इज इक्वलेंट टू मेंटेनेंस. अगर मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति उतनी एफिशिएंटली काम करता रहे तो मुझे उसी ढंग से उसको अपडेशंस और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा. और दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन, अगर आपको अपनी व्हीकल भी आप चला रहे हैं, आप उसकी सर्विसिंग कराएंगे, राइट, टू स्टे विद द सेम लेवल आल्सो, टू बी गिव अ बेटर परफॉर्मेंस. आपको लगता है कि एसएमईज है जैसे प्रोडक्शन वाले एसएमईज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनके पास जूनियर लेवल या एंट्री लेवल प्रोफाइल बहुत सारे होते हैं, लेबर क्लास प्रोफाइल बहुत सारे. आपको लगता है उनका भी ट्रेनिंग कराना चाहिए? यस, उनका भी ट्रेनिंग इसलिए कराना चाहिए ताकि आप वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की जब बात करते हैं, एरर्स विल बी लेसर इन केस यू ट्रेन देम. बट वहाँ पे तो अट्रिशन रेट बहुत हाई होता है. यस, स्टिल वी शुड डू इट. या स्टिल वी शुड डू इट बिकॉज जिसको आपने ट्रेनिंग किया वो उतनी ज़्यादा एरर्स करता रहेगा. एंड सी देयर इज अ मार्केट इमेज एज वेल. Wow. वी से एम्प्लॉय ब्रांडिंग. अगर आपका एम्प्लॉय खुश होकर दूसरी जगह भी अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी आपकी कंपनी का अच्छा नाम ही करेगा. इट्स पार्ट ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग प्रोसेस. Wow, so very good point coming in. As an advice, ट्रेनिंग कराइए, irrespective of the fact कि एम्प्लॉइज रोकेंगे नहीं रोकेंगे. आई थिंक ट्रेनिंग शुड बिकम अ प्रोसेस. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. So somebody said long back, I train people and they leave. So the answer was, what if I don't train and they stay with us? Very practical, absolutely. So the advice is आप लोग ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेनिंग को बजट कीजिए, चाहे फ्रंटलाइनर हो चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो, सबके लिए ट्रेनिंग इज कंपल्सरी कंसिडरिंग द वे द बिजनेस इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग. आई थिंक ट्रेनिंग इज अ बिग गैप इन मार्केट. सो ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपको क्या लगता है, हु आर द राइट पीपल टू गो एंड ट्रेन? मतलब अभी ट्रेनर कैसे ढूंढें? See, you need to come across or you have to come to the senior consultants or people in the industry. So like we get into a lot of trainings around. हम जैसे MDPs वगैरह करते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं for industry professionals around. MDPs, management Development programs. So आपको लगता है कि MDP जैसे प्रोग्राम ज्यादातर कॉर्पोरेट्स कराते हैं, तो कैन दिस बी डन विद SMEs? Yes, it can be done with SMEs also. The point is what happens with these bigger organizations is उनके अगर हम कहें कि भी MDP के लिए सेशन के लिए सपोज 40 लोग आ रहे हैं, we can have a short term or short group training as well. So what happens here is instead of these people coming to different locations, trainers can go to their location और वहाँ पे छोटे ग्रुप्स के अंदर उनके साथ वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स कर सकते हैं. बट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन. कमी कहाँ पर है? ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को हर तरह की चीज़ कराए जा रहे हैं. Yes. सो दैट बिकम्स बोरिंग. जो चीज़ मुझे आती है आप मुझे बार बार वही कराओगे तो भाई मैं क्यों अटेंड करूँ? आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड देन वी गो अहेड. And for this identification also, I think they need some external views. Yeah, so we have interesting tools to identify and analyze things. Great. So पहले आइडेंटिफाई कीजिए फिर ट्रेनिंग के लिए लाइए. दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट. आई थिंक हम लोगों को भी एंड ऑल ऑफ द SMEs should अंडरस्टैंड कि राइट सर लाइक सर कोटेड कि आई ट्रेन एंड दे लीव, बट व्हाट
if we do not train and they stay, अगर वो underperforming asset will stay with you, it will become a liability. तो थोड़े टाइम में आपके underperforming employees जिनको आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए liability बन जाएंगे and then you will get trapped. And this happens with a lot of SMEs. And कहाँ ट्रेनिंग करानी है, कैसे करानी है, there are tools available, there are processes available. आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो I am sure आपको इसका solution मिलेगा. Great. So, sir, moving forward, हमने एट्रिशन की बात की, रिटेंशन की बात की, ग्रोथ जर्नी की बात की, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की. हाउ डू यू सी दिस एसएमई इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग विद टाइम? So SMEs, like I said, आपने जर्नी देखी होगी. yes. So SMEs, like I said, they contribute to 30% of GDP of our country. And with the coming times, their role is becoming more and more critical because almost 50% exports come from SMEs only. Yes. So हमारी कंट्री के लिए SMEs का जो contribution बहुत critical है. And hence अगर इनकी structured growth जो है वो कंट्री की ग्रोथ के साथ मैच करेगी. So if the country is growing, which we assume that SMEs are also growing, and for that matter, they have to become more structured in nature. Everything is becoming more technologically able these days, and lot of analytics tools are available for HR as well. अब प्रोडक्शन के लिए भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं तो HR के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, एंड दैट्स वेयर द होल प्रोसेस बिकम मोर प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड. सो हम जो बातें बोल रहे हैं ये प्रपोजल नहीं है, धीरे धीरे सब कंपल्शन नहीं होने वाला है. यू विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू आर प्रोफेशनल्स. द फास्टर यू पिक अप बेटर इट इज. एब्सोल्युटली. एक क्वेश्चन एम्प्लॉय साइड से पूछता हूँ आपसे टू अंडरस्टैंड योर व्यूज. आप, अब मैं एक रिसोर्स हूँ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन. आपको पता है एजुकेशन इज बिकमिंग एक्सपेंसिव. मैंने बहुत खर्चा किया मेरी एजुकेशन पे. अभी आई एम नाउ रेडी. शुड आई चूज टू गो विद एसएमई, शुड आई स्टे विद माई एस्पिरेशन टू बी अ लार्ज कॉर्पोरेट? क्या एम्प्लॉयज के लिए या एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स के लिए आप ये एडवाइस करेंगे कि गो एंड वर्क विद एसएमई एंड ट्राई टू वैल्यू एड, लेट देम चेंज, अंडरस्टैंड हाउ दे कैन इवॉल्व? So Is it risky or is it like you are talking from a fresh candidate or say fresh a or maybe student sir थोड़ा बहुत experience with little experience, even that is there. See, we always advise such candidates to look for places where they find career growth. भाई उसको ग्रो करना है तो अगर वो जहाँ भी काम करने जा रहा है वहाँ पे उसने क्या सीखा, उसकी क्या वैल्यू ऐड हुई है. अगर वो आगे वहाँ रहता है, आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा, या उसकी वजह से वो आगे लार्जर कॉर्पोरेट्स में जा सकता है क्या? दैट इज हाउ दे लुक एट इट, राइट? सो द पॉइंट इज SMEs इज फाइन प्रोवाइडेड दे आर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्लेटफॉर्म फॉर दीज पीपल टू वर्क. सो दैट इज वेयर द सिनेरियो इज. लाइक आई सेड, टुडेज जनरेशन इज आस्किंग मुझे क्या मिलेगा, राइट? एंड दैट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड फेयर. दीज गाइज आर ट्रांसपेरेंट, दे कैन चेक एनीथिंग ऑनलाइन. सो वो भी चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं प्रोसेस सब ट्रांसपेरेंट हो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो यूथ में हेजिटेशन है छोटे बिजनेस में क्यों काम कर रहे हैं या एक ट्रेडिशनल एसएमई के साथ क्यों काम कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ है कि वो कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इफ दे ओपन अप टू डू दिस, आई थिंक दे कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इनटू द एसएमई बिजनेस. बिकॉज सी द टैलेंटेड पार्ट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर. और वो टैलेंटेड व्यक्ति अगर आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हम लूज कर रहे हैं कुछ. वो सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं कर क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड नहीं हो. सो यू नीड गुड पीपल फॉर दैट. So the point is to all SMEs, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर होंगे तो अच्छे रिसोर्सेज भी आपके साथ आने को काम कर सकते हैं. आई थिंक SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ लॉट इन द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंट्री डज. बट अभी भी जेनजीज, मिलियनर्स आर कीपिंग अवे, और जो टियर 1 क्लास के यूथ है वो दे आर काइंड ऑफ हेजिटेंट कि एक बड़ा ट्रेडर के क्यों काम कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर के काम कर रहे हैं. व्हेन आई सी अगर वो वहाँ पहुँच गए तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन बात कर रहे हैं दैट बिकम्स वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. ग्रेट. सो सर, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, आप एसएमईज को क्या अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू HR, पीपल मैनेजमेंट, व्हाटएवर? Advice that, see, look upon HR as an investment. आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है
ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, राइट? और अगर आप अच्छा पौधा अगर आप लगाएंगे तो अच्छा पेड़ और अच्छे फल ही देगा. So we need to look upon it as an investment. Right people come at a cost, of course, but their output is also more than what others do. They need less training part, they are more relevant, and they make more efforts also, like we also do, right? So look upon it as an investment and also try to see how the world is changing, right? So that's what I'll suggest. Team makes or breaks the business. That's all. That's a very well known phrase.